Hello, welcome back once again in Fundamentals of ICT subject. So in the last lecture, we have started the second chapter of this subject, that is word processing. And we have started the first topic for word processing. We have seen some basic of using the operating in word processor, Microsoft Word Office. In the last lecture, we have understood about the basic font type, its size, color, effects like bold, italic, underline, subscript, superscript. Case changing option means uppercase and lowercase, saving a document, closing a document, and exiting from the application. So in the last lecture, we have completed till the basic things in the Microsoft Office Word. Today, we are going to start with some more new things related to Microsoft Office Word, that is editing a document. So how we are able to edit in a Microsoft Office Word today, we are going to understand and see in this lecture. So first of all, I am sharing you the syllabus of this subject only. In the second unit, editing a document, it is mentioned over here. We have to navigate through document, scroll through text, insert and delete text, select text, undo and redo commands. This is the basic things which we have seen earlier also. The first thing given over here is scroll through text. So as you are able to see in the last lecture, we have done the basic things like this only. I have opened the same file. I have opened the same Microsoft Word file of the last lecture only. So now the very first topic over here, it is asking us to scroll through text. So how we are able to scroll through text? So first of all, you have to point your cursor over where you want to go for the text. Whatever the text you have written, you have to first just put your cursor over there and scroll through text. Scroll through text. So this is the text written over here. The text written over here is subject code. Now we have to scroll through text, means just by pressing the right arrow button from your keyboard, you are able to scroll through text. For example, if something you have missed in this word, for example, if I deleted this J letter, now something is missing, something is mistake in this text. For spelling of subject, the J letter is missing in the middle part. So the scroll through text is used for this only. If by mistake, if you have missed any letters in the text, so scroll through text is used, means you have to just put your cursor over there. For example, I am putting your cursor over the J letter missing. Now I am able to write my J letter, the capital letter, so put caps lock on J letter. So scroll through text means what? Just moving your cursor over the text, whatever the text you have written. So this can be done with the help of the button on the keyboard, a right button. This in this way you are moving your cursor over the text, whatever the text you have written. ओके, तो बात समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को? क्लियर? Yes, yes. हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग ने ये बेसिक चीज़ थी जो स्क्रॉल थ्रू टेक्स्ट करने को कहा गया था। स्क्रॉल थ्रू टेक्स्ट हो गया, इंसर्ट एंड डिलीट टेक्स्ट। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट किया, कोई लेटर मिसिंग था तो उसको मैंने इंसर्ट किया, कोई लेटर एक्स्ट्रा हो गया तो आप उसको उधर पे कर्सर को बीच में रख के बैक स्पेस कर दो, डिलीट हो जाएगा। या आपको सीधा सीधा पूरा ये टेक्स्ट ही आपको हटा देना है, तो जस्ट सिलेक्ट दिस टेक्स्ट और यहाँ पे बैक स्पेस का बटन आप क्या करो, प्रेस कर दो, तो वो आपका टेक्स्ट पूरा हट जाएगा ना। वापस से लेके आना है तो इसके लिए मैंने आपको बता चुका था क्या करना पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा। तो अंडू यहाँ पे आपको ऊपर भी दिखेगा, ऊपर हाईलाइटेड करके भी आपको यहाँ पे एरो मार्क दिखेगा, अंडू टाइपिंग। और उसका शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है कीबोर्ड में, जो बटन प्रेस करने का वो क्या है, कंट्रोल प्लस जेड। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टू ऑप्शंस, चाहे तो आप कंट्रोल प्लस जेड करके लेके आ जाओ, या नहीं तो जस्ट क्लिक ऑन दिस सिंबल ऑफ अंडू। तो जो आप चीज़ इधर पे मिस किए थे वो चीज़ आपकी इधर पे आ जाएगी। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी वापस से रिपीट किया हुआ है, अंडू एंड रीडू कमांड्स। यूज ड्रैग एंड ड्रॉप टू मूव टेक्स्ट, यूज ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप टू मूव टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को आप मूव भी कर सकते हो। टेक्स्ट को मूव करने का वही आपको जो ऑप्शन बताया था, आप कर्सर को इधर पे
पुट करो जहाँ पे टेक्स्ट को आपको मूव कराने का है, यूजिंग स्पेस बार से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को मूव कर सकते हो, या डायरेक्टली आप टैब का बटन भी प्रेस करके उसको मूव कर सकते हो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट को आपको अगर मूवमेंट कराना है, कहीं भेजना है, या एंटर मार के नीचे लेके आना है, सो इन दिस वे यू आर एबल टू मूव योर टेक्स्ट वॉट एवर द टेक्स्ट। जस्ट आपको पहले कर्सर को वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ से आपको मूवमेंट कराने का है। तो मूवमेंट कराना है तो आप स्पेस आपको आगे और चाहिए, तो यूजिंग योर स्पेस बार कीबोर्ड में जो बटन है उसको प्रेस करके आप स्पेसिंग दे सकते हो, बढ़ा सकते हो, और या नहीं तो आप कीबोर्ड में जो टैब बटन है उसको प्रेस करके डायरेक्टली उसकी स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो। So in this way you are able to do these things, movement of this cursor, movement of your text, use drag and drop to move text। तो text को move करना हो गया। हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को समझ लेना है, कॉपी कट एंड पेस्ट। तो कॉपी और पेस्ट तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। कॉपी और पेस्ट सिंपल है। अगर कॉपी किस लिए करते हैं, कि कॉपी इसलिए करते हैं कि वो चीज़ आपकी जो प्रीवियस साइड में वहाँ पे भी रहे और नई जगह पे भी आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये सब्जेक्ट कोड को कॉपी और कहीं दूसरी जगह पे भी लेके आना है, तो यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे और आप कहीं पे दूसरी जगह आपको उसको लेके आना है, तो कॉपी करने के बाद आप पेस्ट के लिए मैंने ऑप्शन बताया था कीबोर्ड वाला, कंट्रोल+V। सो कंट्रोल+V करके आप इधर पे पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में डिफरेंस क्या है? कॉपी पेस्ट में और कट पेस्ट में डिफरेंस ये है कि कॉपी में जो प्रीवियस जगह पे जो डेटा है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा, न्यू जगह पे डेटा वो पेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन यूज किया। तो कॉपी पेस्ट ऑप्शन करने में क्या होता है कि कॉपी हो रहा है, मतलब उसकी इमेज जो है वो दूसरी जगह पे दिखेगी, लेकिन प्रीवियस जगह से इरेज नहीं होगा। Whatever the text you have written in the previous place, it will remain as it is. Only the thing is that by pasting, it will add it in the new place also. So the difference between copy paste and cut paste, copy paste means what, you are keeping the previous data as it is, also you are adding the same data in the new place। तो ये हो गया कॉपी और पेस्ट का मतलब। अब हम लोग को कट पेस्ट में क्या मालूम पड़ेगा? कट पेस्ट में मतलब आप पुरानी जगह से डेटा को कट करके न्यू जगह पे आप पेस्ट कर रहे हो। अभी मैंने आपके सामने कॉपी पेस्ट का ऑप्शन किया था, अब मैं आपके सामने कट पेस्ट का ऑप्शन करता हूँ। तो कट पेस्ट करने में क्या होगा, जैसे मैं ऊपर यहाँ पे कट करता हूँ तो ये पुरानी जगह से जो प्रीवियस जगह पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ तो वो इरेज हो जाएगा। अब जो पेस्ट करूंगा तो वो नेक्स्ट जगह पे आ जाएगा। सो कट पेस्ट करने में और कॉपी पेस्ट करने में डिफरेंस आपको अंडरस्टैंड हुआ, आइडेंटिफाई हुआ। इन कॉपी पेस्ट प्रीवियस जगह पे जो डेटा है वो एज इट इज ऐसी रहेगा, न्यू जगह पे डेटा जहाँ पे पेस्ट करे वहां पे आ जाएगा। बट इन केस ऑफ कट पेस्ट द प्रीवियस डेटा विल बी इरेज एंड वेर एवर यू वॉन्ट टू प्लेस योर न्यू डेटा वहां पे आपका ये क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, कट पेस्ट और यस कॉपी सर। पेस्ट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है सिलेबस में, यूज द क्लिपबोर्ड। सो क्लिपबोर्ड का यूज करना है अभी हम लोग को। तो क्लिपबोर्ड आप लोग का किधर पे होगा, जैसे कि अभी आप इधर पे जाएंगे इंसर्ट में। सो इंसर्ट में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इधर पे दी हुई है। अगर आपको कोई पिक्चर आपको इंसर्ट करना है कहीं से आपका सेव किया हुआ है, तो जहाँ पे भी आपकी कोई भी इमेजेस है तो आपको कोई इमेजेस यहाँ पे लेके आना है, कोई इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर, वॉट एवर द पिक्चर यू विल लाइक टू प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट, जो आपको डॉक्यूमेंट में आप कहीं पे भी सेव करके रख सकते हो, आपकी कोई भी इमेज की फाइल हो सकती है। तो जो भी इमेज की फाइल आपकी जहाँ पे भी रहेगी, तो वो आप जैसे ही ये पिक्चर पे क्लिक करोगे, जहाँ पे भी आप सेव करके रखे रहेंगे, तो वो आप फोल्डर पे जाके वो इमेज को लेके आके इंसर्ट कर देना है जस्ट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये इमेज ले लेता हूँ, SPT1 इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। तो जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वहां पे ये आ जाएगी, जहाँ पे आपने कर्सर को रखे थे वहां पे ये पिक्चर आपकी क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पे था, वो सब्जेक्ट कोड के पास था, नीचे था, तो इसके लिए आ गया। तो आपको प्रॉपर कर्सर को प्लेस करना है जहाँ पे आपको इमेज पेस्ट कराना है। तो फिर से आपके सामने जाता हूँ, पिक्चर में जाता हूँ, जैसे कि अभी ये इंसर्ट, अभी आपकी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई।
सो इन दिस वे यू आर एबल टू इंसर्ट द पिक्चर ऑल्सो। कभी कभी होता है हम लोग को कुछ डायग्राम वगैरह भी लेके आना होता है अपने डॉक्यूमेंट के साथ में, तो आप अलग से अपनी पिक्चर वगैरह को सेव करके रखना कोई भी फोल्डर में, कोई भी फाइल में। तो जस्ट गो ऑन दिस इंसर्ट पिक्चर सेक्शन, और जहाँ भी आपने सेव करके रखे रहोगे कोई भी फोल्डर में, जैसे अगर मैं अपना फोल्डर यूज कर सकता करता था तो वहां से मैं अपनी कोई भी पिक्चर इमेज को लेके आके इधर पे इंसर्ट कर सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पिक्चर सेक्शन को यहाँ पे लेके आ सकते हो। दूसरा इसके अलावा और क्या क्या चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद आपके बाजू में क्लिप आर्ट करके दिया हुआ है। क्लिप आर्ट में ये होता है कि कभी कभी आपको इसके अंदर से ही कुछ अलग अलग इमेजेस चाहिए रहता है, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए चाहिए रहता है। जैसे अगर कोई व्हीकल वगैरह शो करना है, तो जैसे आप इधर पे व्हीकल करोगे, गो करोगे तो व्हीकल के इमेजेस मिल जाएंगे, तो आप इस तरीके से ये व्हीकल के इमेजेस वगैरह इधर पे इंसर्ट कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो जो चीज़ इसमें अवेलेबल रहेगी क्लिप आर्ट में, तो वो सारी चीज़ आपको उधर पे मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ हम लोग एंटर करते हैं कार, तो कार के इमेजेस वगैरह भी दिखेंगी आपको इधर पे। तो जो चीज़ आपको इंसर्ट कराना है, तो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इसके अंदर, मतलब बाय डिफॉल्ट जो जो इमेजेस रहेगी वो इमेजेस आपको इधर पे यूज़ करने मिल सकता है, आप इधर पे इंसर्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे और क्या चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट के बाजू में शेप्स वगैरह भी है। कभी कभी होता है ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ता है, तो ब्लॉक डायग्राम बनाने में आपको ये सब एरो मार्क वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे राइट एरो मार्क हो गया, फिर ब्लॉक रहेगा, तो अलग अलग शेप्स है, शेप्स को आप यूज़ कर सकते हो। कभी आपको फ्लो चार्ट ऐसा टाइप का बनाना रहेगा, तो सर्कल वाला इमेज चाहिए, तो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन द शेप्स ऑल्सो। तो शेप्स के हेल्प से आपको जैसा डायग्राम में बनाना है, जैसा आपको चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आर ऑल्सो अवेलेबल। सिंपल एरो मार्क चाहिए, तो सिंपल एरो मार्क ये हो गया आपका। लाइन खाली ड्रॉ करना है, तो लाइन आप खाली ड्रॉ कर दो इस तरीके से। सो विद द हेल्प ऑफ दिस शेप, शेप के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इधर पे लेके आ सकते हो। तो ये सब आपका क्लिप बोर्ड में जो जो डेटा दिया हुआ है वो सब चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चार्ट। चार्ट को भी आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। कौन सा टाइप का चार्ट चाहिए आपको, दिस ऑल चार्ट्स आर अवेलेबल। जैसे नॉर्मली आप बार ग्राफ देखते हो, कॉलम में रिप्रेजेंटेशन देना होता है, हाईलाइट करना होता है, तो जो डेटा आप दोगे वो डेटा के हिसाब से इधर पे चार्ट वगैरह को भी आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। नॉर्मली पाई चार्ट वगैरह भी यूज होता है, तो पाई चार्ट वगैरह को भी आप डेटा लेकिन डालना पड़ेगा। आप डेटा यहाँ पे आ गया आपके सामने, तो आप इधर पे डेटा मेंशन करो, क्या हिसाब से डेटा के हिसाब से आपको इधर पे शो करना है। तो वट एवर द डेटा, आप आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में इतने लोग पास हुए, साइंस में इतने लोग पास हुए, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इधर पे हाईलाइट करके शो कर दिखा सकते हो। फर्स्ट डेटा इज मैथ्स, सेकेंड डेटा इज साइंस, थर्ड डेटा इंग्लिश, फोर्थ डेटा ICT। तो क्या परसेंटेज, क्या स्केल के हिसाब से आप नंबरिंग करना चाहते हो, देना चाहते हो, तो वो इस चीज़ को आप इधर पे हाईलाइट कर सकते हो। 25%, 30%, 35%, तो बचा कितना, 10%। तो इन दिस वे आप अपने चार्ट को इस तरीके से इधर पे हाईलाइट करके दिखा सकते हो। तो जो पाई चार्ट है वो इधर पे आपको हाईलाइट होकर दिखा रहा है, तो ये मैथ्स का है, ये साइंस का है, जो डेटा मैंने उधर पे एंटर किया। तो इन दिस वे यू आर एबल टू एंटर यहाँ पे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में उस चार्ट वगैरह को भी क्या कर सकते हो, लेके आ सकते हो। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर आफ्टर दिस, इसके बाद फिर आपके पास क्या हो गया, ये क्लिप बोर्ड में हम लोग ये सब चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ दिया हुआ है क्लिप बोर्ड में कुछ यूज़ करने के लिए, क्या दिया हुआ है, हाँ, स्क्रीनशॉट वगैरह भी आपको कोई स्क्रीन का लेके आना है, नीचे स्क्रीनशॉट जैसा लेके आना है, तो जो जो विंडोज़ अभी फ़िलहाल ओपन है, अवेलेबल है, तो उस विंडोज़ का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन का भी यहाँ पे इमेज लेके आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेबस का इमेज चाहिए मुझे, तो सिलेबस का इमेज यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, इधर पे आ गया आपका। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको लेके आना पड़ेगा इधर पे, इसको एडजस्ट करके प्रॉपरली आप असाइन इसको इधर पे अरेंज कर सकते हो।
सर हरे डॉट से। इस तरीके से आप ये अपने डॉक्यूमेंट में ये इमेज को भी क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, इंक्रीज करना है इसकी साइज विद द हेल्प ऑफ दिस कर्सर सेटिंग। आप इसकी साइज को इधर पे इंक्रीज करो, यहाँ पे दिखेगा। इसकी एडजस्टमेंट लेफ्ट साइड की आपको ये इससे इधर पे लेफ्ट अलाइनमेंट करना पड़ेगा। तो जो स्क्रीन शॉट टाइप का ये आपका इधर पे भी आपका स्क्रीन का आ सकता है, इधर पे इंसर्ट कर सकते हो। तो ये सब किस में, कौन से सेक्शन में था, ये सब क्लिप आर्ट क्लिप बोर्ड के उसमें सेक्शन में था, तो इसलिए मैंने सब चीज़ को क्या किया, कवर किया। क्लिप बोर्ड सेक्शन में सब चीज़ इधर पे अवेलेबल थी, तो ये सब चीज़ को हम लोग ने इधर पे अंडरस्टैंड किया। यूज द क्लिप बोर्ड, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एंड अलाइन टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स। अब जो भी टेक्स्ट वगैरह आप लिखते हो उसको किस तरीके से अलाइन करने का, तो एक स्टार्टिंग में मैंने समझाया था, वो अपने को वहाँ पे भी स्टार्टिंग में ही दिया हुआ रहता है। जैसे कि अभी ये सब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसका अलाइनमेंट वगैरह करना है तो कोई सेंटर में करना है, लेफ्ट साइड में करना है, राइट साइड में करना है, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है लेफ्ट साइड राइट साइड। तो ये चीज़ है अलाइनमेंट करने के लिए। प्लस आप डायरेक्टली ऊपर से भी इधर पे ये विद द हेल्प ऑफ दिस कर्सर इसका अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको शिफ्ट कराना है इसका अलाइनमेंट, तो ये अलाइनमेंट आप इधर पे इसकी कर्सर की पोजीशन को चेंज कर दो, तो ये इसका अलाइनमेंट का पोजीशन चेंज हो जाएगा। आपको टेक्स्ट राइट साइड में भी ज़्यादा मार्जिन चाहिए, तो मार्जिन यहाँ पे बढ़ा दो उसकी, तो टेक्स्ट की मार्जिन यहाँ तक बढ़ जाएगी। तो जो मार्जिन के हिसाब से आपको इधर पे पोजीशन लेके आना है, टेक्स्ट को दिखाना है इधर पे, तो वो पोजीशन को आप विद द हेल्प ऑफ दिस कर्सर ऑल्सो, कर्सर की पोजीशन को चेंज करके भी आप क्या कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो लेफ्ट साइड राइट साइड अलाइनमेंट के बारे में। प्लस इसके बाद आपको पैराग्राफ की स्पेसिंग वगैरह के बारे में भी बताया हुआ है, सिलेबस में बोला है। फॉर्मेट एंड अलाइन टेक्स्ट हो गया, फॉर्मेट पैराग्राफ्स, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग वगैरह आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ का ही सेक्शन दिया हुआ है, तो पैराग्राफ के सेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग करके ये आइकॉन दिया हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग आप स्पेसिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। यानी स्पेसिंग मतलब समझ में आया, एक लाइन के बाद में दूसरी लाइन में कितना स्पेस होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, तो वो चीज़ को आप इधर पे नंबरिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 अभी फिलहाल कितने स्पेसिंग पे, 1 की स्पेसिंग पे, 2 की स्पेसिंग में देखो इसका गैप बढ़ जाएगा, 2.5 में उससे ज़्यादा बढ़ेगा, 3 में उससे ज़्यादा बढ़ेगा। और भी आपको सेटिंग करना है तो यहाँ पे आप इधर पे कस्टम में जाके और कर सकते हो। इधर पे आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में दिया हुआ है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। सो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आप इधर पे जाके और जो भी आपको इधर पे चेंजेस लेके आना है, करना है, वो हिसाब से आप इधर पे कर सकते हो। स्पेसिंग ऑटो 10 पॉइंट्स, तो जो हिसाब से आपको स्पेसिंग रखना है आप स्पेसिंग इधर पे कर सकते हो। 1.5 लाइन्स, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली। तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट सिंगल की स्पेसिंग में है, वो हिसाब से उसको रखो। और भी इधर पे बेसिक चीज़ दी हुई है, अगर आप इधर पे देखोगे नो स्पेसिंग पे भी इधर पे आपका टेक्स्ट जो हाईलाइटेड किया हुआ, जो पैराग्राफ आपने सिलेक्ट करके रखे हो, तो अभी ये नॉर्मल सेक्शन में है। नो स्पेसिंग पे आप क्लिक करोगे तो कोई भी स्पेसिंग नहीं रहेगी। अब नो स्पेसिंग, कोई स्पेस नहीं, डायरेक्ट इधर पे लिखा हुआ है, वन आफ्टर दी अनदर। नॉर्मल ही रखना है, नॉर्मल में रखो, जो चीज़ में आपको रखना है उधर पे रख सकते हो। फॉन्ट चेंज हो जाएगा, वापस आप अपने फॉन्ट में लेके आ जाना उसको, तो फॉन्ट में लेके आना है। तो लाइन स्पेसिंग का जो पैराग्राफ जिधर पे जो सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे ही दिया हुआ है। इधर पे जो आपको कभी कभी होता है, कोई हम लोग का अगर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बोला हुआ होता है तो उसमें दिया हुआ रहता है, मेंशन किया हुआ रहता है कि लाइन स्पेसिंग 1 का होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग 1.5 का होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग 2 का होना चाहिए। तो जो भी पैराग्राफ आपने लिखे हुए रहेंगे तो वो चीज़ आप इधर पे जाके ये लाइन स्पेसिंग सेक्शन में जाके वो उस हिसाब से आप उसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ इधर पे दी हुई है। रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो जो चीज़ आपको उधर पे मेंशन की हुई रहेगी, जैसा पूछा हुआ रहेगा, वो चीज़ को आप इधर पे जाके एडिट कर सकते हो। बस यहाँ पे ये चीज़ समझाना था कि ये चीज़, ये सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, इधर पे अवेलेबल है। फिर आफ्टर दिस लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के बाद में, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई आपके सामने, यूज़ फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ मल्टीपल चीज़ है बहुत जगह पे दी हुई है, जैसे अभी एकेडमिक ईयर
1920 पिछले साल चल रहा था, अभी एकेडमिक ईयर क्या आ गया, 2021 आ गया, तो 1920 बहुत जगह पे लिखा हुआ रहेगा, तो अब हर जगह जाके हम लोग चेंज करें इतना बहुत जगह टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इससे अच्छा बेटर क्या है कि जहाँ जहाँ पे भी एक 1920 लिखा हुआ है, जस्ट बाय यूजिंग द दिस आइकॉन, आप इधर पे विंडोज के ऊपर मेनू बार में देख सकते हैं, रिप्लेस रिप्लेस का इधर पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिप्लेस ऑप्शन, तो ये रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके आपको जो चीज़ फाइंड कराना है, तो वो चीज़ को फाइंड करा के आप उसको उस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सामने कोई चीज़ नज़र आ रही है जिसको मुझे रिप्लेस कराना है, चेंज कराना है। अगर ये शिफ्ट जो दिख रहा है, इस शिफ्ट के बदले में मैं कुछ और चेंज कराना चाहता हूँ, तो फर्स्ट मेरे को यहाँ पे वो शिफ्ट को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो शिफ्ट को आप किससे रिप्लेस कराना चाहते हो, जो भी चीज़ से रिप्लेस कराना चाहते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट को रिप्लेस कराना चाहता हूँ कोर्स से, तो ये रिप्लेस के ऑप्शन को क्लिक करके क्या हो जाएगा, ये पहले तो ये बताया कि शिफ्ट आपको हाईलाइट करके दिखाया कि कहाँ पे शिफ्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे शिफ्ट लिखा हुआ है। अब जब मैं रिप्लेस का बटन प्रेस करूंगा तो ये दिखा दिया वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। ओके, अब यहाँ पे उसने रिप्लेस करके भी दिखा दिया मुझे। तो जो मैंने शिफ्ट एंड F3 था, वो शिफ्ट अभी रिप्लेस हो गया किससे, कोर्स से। तो फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पे सिर्फ फाइंड से क्या होगा, सिर्फ फाइंड होगा, खाली आपको फाइंड करके बताएगा कि इधर पे है, कहाँ पे है। और अगर रिप्लेस पे जब जाएंगे, तो रिप्लेस पे जाके आप फाइंड करके वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो जो भी सेंटेंसेस मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स लिखे हुए रहते हैं और उसको चेंज करना होता है, जैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया कि एकेडमिक ईयर 1920 को आप चेंज करना है 2021 में, तो बहुत जगह पे 1920 लिखा हुआ रहेगा, तो आप उधर पे यहाँ पे जो एग्जैक्टली सेंटेंस आपने लिखा है उस सेंटेंस को वैसे ही लिखना है 2019-20, और उसको रिप्लेस कर देना 2021। रिप्लेस ऑल करोगे ना, तो जहाँ जहाँ पे भी लिखा हुआ रहेगा वहाँ वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा वो पूरा। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको मैंने, जो मैंने यहाँ पे शिफ्ट का चेंज कर दिया, किससे, कोर्स से चेंज कर दिया। ये जस्ट एक एग्जांपल था आपके सामने। तो ये सब चीज़ है, मतलब हम लोग यहाँ से हम लोग रिप्लेस एंड ऑल करके सारी जगह पे जो भी लिखा हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग को अभी क्या अंडरस्टैंड करना है, क्या बोला गया है रिप्लेस के बाद, सेटिंग लाइन स्पेसिंग। तो ये लाइन स्पेसिंग की सेटिंग तो हम लोग ने अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेफ्ट में कितना स्पेसिंग रखना है, राइट में कितना स्पेसिंग रखना है, ये सब चीज़ को तो हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन स्पेसिंग सेक्शन से भी देखे। और प्लस मैंने डायरेक्टली आपको ना यहाँ से अपना कर्सर के मूवमेंट को भी करके बता दिया। तो ये लाइन की स्पेसिंग वगैरह हो गया। अब जब भी आप एंटर करोगे ना, तो आपको इधर पे नहीं जाएगा, जो आप स्पेसिंग रखे हो उतने में ही आएगा। यानी अभी मैं नेक्स्ट एंटर करूंगा, तो मेरा अब जहाँ पे मैंने जितना स्पेसिंग रखा हो लेफ्ट साइड में, उतने की पोजीशन के हिसाब से नेक्स्ट सेंटेंस टाइप होगा। तो लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन जो है वो चीज़ आपको इधर पे भी दिखेगा, प्लस डायरेक्टली आप ये कर्सर का यूज़ करके यहाँ पे वो उसकी सेंटेंस की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। तो अभी मैंने सेंटेंस की पोजीशन को यहाँ पे लेके आ गया, चेंज कर दिया पोजीशन को। अगर इसकी पोजीशन को खाली चेंज कराना है, तो इसकी पोजीशन को आप चेंज करा सकते हो बाय मूविंग दिस कर्सर। कर्सर को इधर पे मूव करके आप उसकी पोजीशन को चेंज करा सकते हो। और नेक्स्ट टाइम आप जब आएगा तो इधर पे आप इधर पे एंटर कर सकते हो, इधर पे लिखा हुआ। ये वाला सेंटेंस अपने उधर पे ही है, मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ का सेंटेंस का यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दिया। तो जो पैराग्राफ की पोजीशन आप चेंज कराना चाहते हो वहाँ पे कर्सर का क्लिक होना चाहिए, फिर आप इधर पे उसका मूवमेंट करके उसको चेंज करा सकते हो। तो इज दैट क्लियर, सब लोगों को समझ में आ रहा है लाइन Yes, स्पेसिंग? sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो लाइन स्पेसिंग का भी हो गया, इसका अलाइनमेंट भी हो गया। आप अलाइन किस तरीके से कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, कितने स्पेसिंग में एंड करना है, तो ये क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है ऐड बुलेट एंड नंबर्स इन द लिस्ट। अब बुलेटिंग वगैरह करना होता है, नंबरिंग करना होता है, तो बुलेट्स वगैरह को हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं इधर पे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं, तो मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके दिखाना रहता है हम लोग को, तो उसके लिए बुलेट्स या नंबरिंग वगैरह यूज़ होता है। सो हाउ टू इंसर्ट योर बुलेट्स एंड गिविंग द नंबरिंग, तो यहाँ पे आपके सामने ही होम में ही इधर पे आपको स्टार्टिंग में ही नजर आएगा दिस आइकन, पैराग्राफ के फर्स्ट ऑप्शन में बुलेट्स नजर आएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस बुलेट्स, अभी यहाँ पे नन था, तो जो टाइप के बुलेट्स का हिसाब से आप देना चाहते हो, हाईलाइट कराना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एरो मार्क नॉर्मली यूज होता है,
तो बुलेटिंग वगैरह करने में वो हाईलाइटेड पॉइंट्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 2 3 3 4 4 5। तो जो चीज़ बुलेटिंग वगैरह में आपको बुलेट्स इस तरीके से यहाँ पे होम में ही आपको पैराग्राफ के फर्स्ट ऑप्शन में बुलेट्स नजर आएगा। तो बुलेट्स के भी अलग अलग स्टाइल है, वॉट एवर द स्टाइल यू लाइक वो लाइक करते हो जो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली राइट मार्क, एरो मार्क, ये सब वगैरह यूज होता है। ओके, सो बुलेट्स का ऑप्शन इधर ही पे अवेलेबल है। दूसरा यहाँ पे हम लोग को बोला गया है नंबरिंग। अगर आपको कभी कभी नंबरिंग यूज करना होता है 1 2 3 4, एक तो 1 डायरेक्टली 1 2 प्रेस करके एंटर करके भी नंबरिंग आ सकता है, प्लस यहाँ पे आपको नंबरिंग का ऑप्शंस भी इधर पे दिया हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग के ऑप्शन में इधर पे जाऊंगा तो 1 2 3 इस तरीके से चाहिए, ये वाला चाहिए, ABC नंबरिंग में चाहिए। तो जो नंबरिंग के हिसाब से आपको चाहिए इधर पे नंबर लाइब्रेरी यहाँ पे आपको दिखाई देगा इधर पे। तो आपको ये पैटर्न का 1 2 3 नंबरिंग के हिसाब से चाहिए तो आप इधर पे यूज कर सकते हो नंबरिंग सर के इसका हिसाब। प्रैक्टिकल होएगा? प्रैक्टिकल होगा ना इसका, प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये नंबरिंग के हिसाब से। इधर पे आप इधर पे नंबरिंग के हिसाब से इसको दे सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। पैराग्राफ ऑप्शंस में ही आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है बुलेट्स का दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है नंबरिंग का दिया हुआ है। So with the help of these two options, you are able to give the bullets, you are able to give the numbering either in 1 2 3, either in ABC पैटर्न। जो पैटर्न में आपको चाहिए यहाँ पे इधर पे ऑप्शंस अवेलेबल दिया हुआ है इन दिस नंबरिंग फैशन 1 2 3। तो विच एवर द फैशन यू लाइक, वो लाइक जो करते हो आप वो हिसाब से जैसा आपको चाहिए तो इधर पे आप जाके इधर पे नंबरिंग कर सकते हो जैसा। ना आफ्टर दिस नंबरिंग के बाद इसके बाद आपके पास आ गया है बुलेट एंड नंबरिंग इन लिस्ट के बाद ऐड बॉर्डर्स एंड शेडिंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बॉर्डर वगैरह आपको देना है अपने डॉक्यूमेंट में। तो बॉर्डर वगैरह आप किस तरीके से दे सकते हो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज लेआउट में। इन द मेनू बार गो टू पेज लेआउट, पेज लेआउट सेक्शन में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको पेज बॉर्डर करके ऑप्शन नजर आएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पेज बॉर्डर, जो बॉर्डर आपको सिलेक्ट करना है, जो टाइप का बॉर्डर आपको सिलेक्ट करना है, बोल्ड टाइप का आपको सही है तो इधर पे आप सिलेक्ट करो, ओके कर दो। तो इस तरीके से आपका बॉर्डरिंग आ जाएगी डॉक्यूमेंट में, पेज बॉर्डर। So in this way you are able to give page border. Just go on page, go to page layout section. In page layout section you are having page border option, page border option पे जाओ, select करो, ओके करो। तो यहाँ पे आपका ये पेज में बॉर्डर्स आ जाएंगे। नाउ उसी के साथ में पेज बॉर्डर के साथ में पेज का कलर भी आप कर सकते हो। पेज कलर में जाके पूरा पेज का क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। सो वॉट एवर द कलर यू लाइक, जो कलर आपको पसंद है, जो आप पसंद करते हो वो कलर को आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस पेज कलर पूरे पेज का वो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन दिस सेक्शन। सिलेबस में पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है, सिलेबस में क्या दिया है, खाली ऐड बॉर्डर्स एंड शेडिंग दिया हुआ है। ओके, जैसे कि अभी हो सकता है अभी इधर पे आपको कोई वाटर वॉक वगैरह ऐड करना हो, यहाँ पे इसके बाजू में एक ऑप्शन दिया हुआ है वाटर मार्क। वाटर मार्क किस लिए यूज होता है, कभी कभी आपके डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट बनाना होता है। नॉर्मली सब लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह कर लेते हैं। तो आपको अगर हाईलाइट करके दिखाना है कि हाँ ये किसने बनाया हुआ है, आप लोग नॉर्मली नोट्स वगैरह में देखते हो तो नोट्स वगैरह में ये सब चीज़ नाम हाईलाइटेड करके आता है। जैसे अभी ये मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है तो वो नोट्स में मेरा नाम हाईलाइट होना चाहिए, तो इन द बैकग्राउंड तो वो वाटर मार्क वाले ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे इमेजेस दिख रहा है आपको, तो इस इमेजेस में आप किस तरीके से अपने नाम को इधर पे अपने नोट्स में हाईलाइट करके दिखा सकते हो। मतलब एकदम फ्रंट में पूरा दिख के नहीं आएगा, लेकिन जैसा आप उधर पे रखोगे वैसा आपको वो इमेज आपके रिप्रेजेंट होगा आपके नोट्स में भी। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कस्टम वाटर मार्क करता हूँ तो कस्टम वाटर मार्क में, टेक्स्ट वाटर मार्क में जो हिसाब से आपको अपना नाम दिखाना है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ अपने नोट्स में, मैं अपना नाम दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है
वो टेक्स्ट आपको किस तरीके से चाहिए, डायगोनली दिखाई देना चाहिए आपकी नोट्स पे, तो डायगोनली पे क्लिक किया हुआ है ऑप्शन पे, अप्लाई कर दो, क्लोज कर दो. नाउ यू आर एबल टू सी माय नेम आल्सो इन बैकग्राउंड. Yes, sir. हाँ, तो जो डेटा मैंने लिखा है, जो मैंने डेटा अपना नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है, तो अगर मैं अपना नाम भी हाईलाइट कराना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ इन माय बैकग्राउंड्स, तो इससे ये ऑथेंटिसिटी होगी. हाँ, इससे ये मालूम पड़ेगा कि हाँ ये किसका नोट्स है, किसने बनाया है. तो ये वाटर वॉक का ये यूज़ होता है, वाटर मार्क का. तो विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर मार्क आप क्या कर सकते हो, अपना हाईलाइट करके दिखा सकते हो, शो कर सकते हो, रिप्रेजेंट करा सकते हो. ओके. नाउ Yes, sir. आफ्टर आफ्टर दिस, इसके बाद पेज सेटिंग एंड मार्जिन्स, ये तो चीज़ आपको मैंने बता ही चुका है. पेज सेटिंग्स, मार्जिन्स वगैरह किस तरीके से कर सकते हो. स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल चेक, ये भी चीज़ पहले ही क्लियर कर चुका था मैंने आपको. अगर Yes. कुछ अगर कुछ ग्रामेटिकल एरर रहता है, तो आप कर्सर को जस्ट वो वर्ड पे लेके जाओ, राइट क्लिक करो, तो पहले हाईलाइटेड करके दिखाता है. ठीक है ना, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आप लोग को कि ये कोलन वगैरह अगर स्पेसिंग करके रखूंगा, तो इधर पे हाईलाइट करके दिखाता है. देखो अभी यहाँ पे ये हाईलाइट करके दिखा रहा है कि देयर इज सम एरर इन दिस सेंटेंस इन दिस फ्रेम. तो जैसे ही इस पर राइट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे करेक्टेड पहले ही दिखा देगा, तो उसको क्लिक कर दो, ये करेक्ट हो जाएगा आपका. तो ये ग्रामेटिकल एरर जो भी है वो डायरेक्टली आपको इधर पे हाईलाइट करके दिखाएगा, और उस पर जाके खाली आपको राइट क्लिक करना है, तो ऊपर टॉप में करेक्टेड सेंटेंस जो पॉसिबल इसकी डिक्शनरी में है वो आपको इधर पे दिखा देगा. तो ये इस तरीके से ये चीज़ हो गई आपकी, स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल चेक्स वगैरह भी हो गया. चेंजिंग द लेआउट, एडजस्ट पेज मार्जिन्स, पेज की मार्जिन्स वगैरह कैसे एडजस्ट करेंगे. चेंज पेज ओरिएंटेशन, पेज का ओरिएंटेशन कैसा चेंज करना है, तो ये पेज लेआउट में ही आपको इधर पे दिखेगा. इधर पे पहला इधर पे सेक्शन जो है मार्जिन है, तो ये सब प्रिंट आउट वगैरह करने में हम लोग को ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है. कभी कभी हमारा सेंटेंस, कभी कभी हमारा जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट का नोट है वो प्रॉपरली विजिबल नहीं होता है, नोट्स पे नहीं आता है. तो कौन से पेज की मार्जिन के हिसाब से हम लोग को एडजस्ट करना है, सेट करना है. तो नॉर्मल में टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम में नॉर्मली क्या होता है, 1 1 1 1 होता है. तो कभी कभी आपको ऐसा बना के दिया हुआ रहता है कि लेफ्ट में, टॉप में, राइट में इतनी स्पेसिंग होना चाहिए. तो वॉट एवर द मार्जिन्स यू हैव बीन गिवन, तो वो जो दी हुई है उसके हिसाब से आप इधर पे जाके एडजस्ट कर सकते हो. तो मार्जिन के सेक्शन में जाके अगर आपको स्पेसिफाई किया हुआ है, कोई नोट्स में आपको ऐसा टास्क दिया हुआ है कि आपको टॉप में इतना ही रखना है, बॉटम में इतना ही रखना है, लेफ्ट में इतना ही रखना है, राइट में इतना ही रखना है, तो बाय गोइंग इन द मार्जिन्स एंड कस्टम मार्जिन्स में जाके आप वो सारी चीज़ को इधर पे ऐसा जाके चेंज कर सकते हो. तो जो आपको इधर पे सेटिंग करना है, एडजस्ट करना है, जस्ट क्लिक ओके, वो हिसाब से इसकी मार्जिन्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई. एक तो मैंने आपको बताया था डायरेक्टली कर्सर को मूव करके इधर पे हम लोग कर सकते हैं, यानी तो आप मार्जिन्स में जाके इधर पे जो हिसाब से आपको सेटिंग करना है, एडजस्ट करना है, वहाँ पे जाके आप उसकी मार्जिन्स को चेंज कर सकते हो. तो मार्जिन्स के सेक्शन में जाके जो मार्जिन्स के हिसाब से आपको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में रखना है, वो हिसाब से आप उधर पे उसको रख सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन. तो ओरिएंटेशन दो तरीके का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है. तो अभी फिलहाल अपना कौन से ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट में है. लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन के हिसाब से इस तरीके से आपका आएगा. तो दो तरीके के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. तो जैसा ओरिएंटेशन रखने को कहता है, नॉर्मली पोर्ट्रेट फॉर्म में रखते हैं, तो स्ट्रेट वर्टिकल टाइप में आपको दिखता है इधर पे. और अगर आप लैंडस्केप में ओरिएंटेशन में रखोगे तो हॉरिजॉन्टल टाइप में हो जाएगा. ज़्यादा जो कवर होगा एक रेक्टेंगल टाइप शेप फॉर्म में आपका लैंडस्केप ओरिएंटेशन फॉर्म होता है. सिलेबस में इधर पे स्पेसिफाई किया हुआ था कि ओरिएंटेशन वगैरह कैसे आप चेंज कर सकते हो, तो पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप फॉर्म में रखना है, तो वो चीज़ आपके पास पेज लेआउट के सेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है. तो अंडर पोर्ट्रेट अभी जो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है. कभी कभी हमारे कुछ ऐसे नोट्स होते हैं या टाइम टेबल वगैरह जो बनाना होता है, उसको हम लोग फिर किस में एडजस्ट करना पड़ता है, लैंडस्केप वगैरह ओरिएंटेशन में एडजस्ट करना पड़ता है. तो बाय चेंजिंग, बाय गोइंग टू दिस सेक्शन, we are able to do the landscape orientation also. Then after this, there is given to create headers and footers. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
हेडर एंड फुटर वगैरह किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. सो हाउ वी आर एबल टू इंसर्ट द हेडर एंड फुटर. सो हेडर एंड फुटर का भी ऑप्शन आपके पास इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट में जाके आपको इधर पे हेडर चीज़ नज़र आएगी. तो इंसर्ट में जाके आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो कैसा हेडर चाहिए आपको, कैसे टाइप का चाहिए, किस टाइप का आपको हेडर दिखाना है, हाईलाइट कराने का है. तो यहाँ पे इधर पे दिया हुआ रहेगा, अलग अलग टाइप का दिया हुआ है. जस्ट क्लिक ऑन दिस. तो यहाँ पे अब ये आपका जो भी रहेगा वो हाईलाइटेड जो भी चीज़ रहेगा वो इधर पे हेडर में आप इधर पे दिखा सकते हो. तो जैसे फॉर एग्जांपल ARKP. तो ARKP को मैं इधर पे हाईलाइट कराना चाहता हूँ. तो ये चीज़ को इधर पे लिखा. अब ये स्टार्टिंग हेडर मतलब स्टार्टिंग हेड में वहाँ पे दिखेगा. उसका फॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो इधर पे जाके. बोल्ड करना है, साइज को इंक्रीज करना है, साइज को इंक्रीज कर दो. इसको मिडल में लेके आना है, मिडल में लेके आ जाओ. तो ये आपका इधर पे अब ये हेडर हो गया. तो इस तरीके से हेडर इनसाइड स्टार्टिंग में हाईलाइट करके दिखेगा. नॉर्मली आप लेटर हेड देखते हो ना, कोई कंपनी का लेटर हेड वगैरह होता है या कॉलेज का ही लेटर हेड ले लो तो ऊपर जो नाम वगैरह लिखना रहता है बाय डिफॉल्ट. तो ये सब चीज़ इधर पे हेडर का यूज़ होता है. इधर पे हेडर का यूज़ करके वो हाईलाइटेड पूरा इधर पे लिख के आएगा. या इमेजेस आपको इंसर्ट करना होता है, कोई इमेज डालना होता है, लोगो डालना होता है. तो ये सब चीज़ हेडर का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ को ऊपर हाईलाइट करके दिखा सकते हो. तो हर पेज पे वो आएगा, हर पेज पे वो क्या आएगा, वो हाईलाइट होकर दिखाएगा. सिमिलरली ये तो हेडर का था. इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, फुटर जो नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ. तो डाउन साइड की तरफ जैसे पेज नंबरिंग वगैरह आपको देना होता है तो वो सब चीज़ भी लिख सकते हो. या प्रीपेड बाय जैसे आपको दिखाना है हर जगह प्रीपेड बाय, ये नोट्स किसने प्रीपेड किया, प्रीपेड बाय. तो ऐसा भी आप इधर पे नोट्स में प्रीपेड बाय अली हसन सर जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है. अब इसको भी आप इधर पे पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो एंड में इधर पे. तो अब ये हर नोट्स में मेरा इस तरीके से दिख जाएगा प्रीपेड बाय अली हसन सर. तो एक मैं नॉर्मल एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक वर्ड डॉक्यूमेंट आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो. सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंसर्ट हेडर एंड फुटर. तो आप इंसर्ट में जाके ये हेडर में जाके हेड जो ऊपर आपको हेड पे जो दिखाना होता है जो सेंटेंस वो दिखा सकते हो. फुटर मतलब जो डाउन में आपको कुछ वो फुट नोट्स टाइप का कुछ लिखा हुआ दिखाना है आपके नोट्स में तो आप इधर पे दिखा सकते हो फुट नोट्स में. आर यू गेटिंग, एवरीबडी गेटिंग? हेडर एंड फुटर समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सेट एंड चेंज इंडेंटेशन. इंडेंटेशन मतलब वही होता है पेज का जो लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन जो आपको चेंज करना है उसको इंडेंटेशन ही बोलते हैं. मैं लाइन स्पेसिंग में जब गया था तो आपको इधर पे जो चीज़ दिखा रहा था लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में तो इसको इंडेंटेशन ही बोलते हैं. यानी लेफ्ट में कितना रखना है, राइट में कितना आपको रखना है स्पेसिंग. मतलब ये जो सेंटेंस की बात चल रही है, जो कर्सर की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में राइट साइड में कितना आना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए. तो ये लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाके आप इधर पे ये इंडेंटेशन में जाके आप इधर पे दिखा सकते हो, बता सकते हो. जैसे राइट में 0 है तो आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो 0.1. तो इस तरीके से सब पोजीशन इसकी चेंज होगी इधर पे. यानी जब भी हम लोग एंटर करेंगे तो वो हिसाब से आपको इधर पे कर्सर दिखाएगा. तो इंडेंटेशन मतलब वही कर्सर की पोजीशन लेफ्ट साइड राइट साइड में कितना करना है. तो सिलेबस में वो दिया हुआ था चेंज इंडेंटेशन. इनसाइड एंड क्लियर टैब्स. तो टैब्स तो आपको पता ही है, टैब्स हम लोग मारेंगे तो स्पेसिंग होगा. यहाँ पे मैंने टैब्स बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आगे इमेज अपना कर्सर शिफ्ट होते जा रहा है. तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है. हम लोग ने 2 कंटेंट कवर किया आज के लेक्चर में. एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट एज वेल एज चेंजिंग द लेआउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट. सो दिस 2 टॉपिक्स वी आर कवर इन दिस लेक्चर. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा. Yes, sir. ठीक है. Okay, so that's all for today's lecture. Thank you very much for understanding and listening and joining. Attendance. Attendance. और अटेंडेंस का मुझे टेंशन नहीं, अटेंडेंस आपकी ऑलरेडी मार्क हो जाती है, बता चुका हूँ मैं आप लोग को. Okay, sir. Thank you for. Bye, थैंक sir. यू, Bye, थैंक sir. यू वेरी मच. Bye, sir. Allah Hafiz, sir. खुदा हाफिज़. Bye, sir. Thank you, sir.